Hello dear students, as you know that chapter 7 is going on, properties of bulk material, and first chapter is already covered. In this video I am going to discuss with you pressure due to a liquid column and Pascal's law, and what is the effect of gravity on the pressure of liquid columns. So we will start our lecture with pressure due to liquid column. So what is a liquid column? Liquid column means, suppose you are having a container which is having area of cross section A and height h, and it is filled with some liquid whose density is rho. It is filled with some liquid whose density is rho. So we know that what is the volume of this column? Volume is equal to volume of cylinder, that is area into height, पाई आर स्क्वायर जैसे हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और अगर हम इसका मास निकालना चाहेंगे तो मास का फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करेंगे तो रो ए एच, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वेट? वी नो दैट W इज इक्वल टू mg, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू रो ए जी एच। ठीक है। नाउ इट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, एंड वी नो दैट आवर फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वेट. So when I will divide this rho A G H by A, what I will get? Rho G H. So my pressure due to liquid column is rho G H, which is depending on the density of fluid, acceleration due to gravity, and height of the liquid column. So pressure at bottom of this column is equal to rho G H. So this is your topic, pressure due to liquid column. You can also observe in this derivation that your pressure is independent of area of cross section. So it doesn't matter whether the height of column is doesn't matter whether area of liquid column is small or large, the pressure due to liquid column always remains same. Okay, so it is quite easy. The volume is AH, mass is density multiplied by volume, that is rho AH, and then weight is mg. Weight and force are same. The force here is the weight, so rho AGH, and pressure is force upon area. Dividing by area, rho GH is the pressure. Okay. The next point which I would like to discuss with you is hydrostatic paradox. What is hydrostatic paradox? Hydrostatic paradox says that if we are having a shape of container like this, and we are having liquid in this filled up to height h from the ground, and we are having a pressure measuring device here which is reading pressure P. This is A, and again we are having a B column. Again we are having a pressure measuring device which is again measuring the pressure P, and the height of liquid column is same. Let us say this device is measuring P1, this device is measuring P2, and we are having shape of container like this, and again we are having a pressure measuring device which is measuring the pressure P3. The shape of container is like this, and again liquid is filled. So as you can notice in this, the volume of liquid is different in all these three cases, A, B and C. So what about the pressure readings in 3 meters? Any guess if you want to make it quickly? A में ऊपर चौड़ाई ज़्यादा है कंटेनर की, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. B थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और C में बेस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है. तो प्रेशर जो है वो तीनों डिवाइसेस में से बॉटम पे किस पे ज़्यादा होगा?
तीनों की जो हाइट है वो सेम है हमारी। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि जो प्रेशर है तीनों का वो सेम होएगा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि द प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूले में पढ़ा था, तो आपका जो प्रेशर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी और एक्सेलरेशन थ्रू ग्रेविटी इन तीनों कंटेनर्स के लिए सेम है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो जो प्रेशर है तीनों का वो सेम होएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो जो थर्ड पॉइंट है इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पास्कल्स लॉ में क्या कहता है? पास्कल लॉ में ये कहता है कि किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड है आपके पास और वो फ्लूइड का प्रेशर P है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे, क्योंकि पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन में ना कई बार वो हाइट को इंक्लूड नहीं करते, बट इफ हाइट इज कंसिडरेबल वी हैव टू इंक्लूड हाइट फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट। इन सम ऑफ द केसेस वी इग्नोर हाइट इफ द height difference is small comparing to the pressure, but otherwise we have to consider height. So that's why while defining Pascal's law I will use at same height level. So if in a container there is a liquid and then at a particular horizontal level, pressure at the all points of container will remain same. So Pascal's law simply states that at same horizontal level in a fluid or any liquid, water or oil fluid, pressure at all the points on same horizontal plane must be same. Now if I will consider the cross section of a container, horizontal cross section, and I will draw it on board like this, pay attention. So this is a closed container और इसका ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया, जिसके यहाँ पे एक पिस्टन है, एक पिस्टन इसमें यहाँ पे है और एक पिस्टन इसमें यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, लेटर से इस पिस्टन का एरिया A है, तो इस पिस्टन का एरिया 2 है, A है डबल, और इस पिस्टन का एरिया लेटर से 3A है, 3 टाइम्स द एरिया ऑफ A। सो पास्कल्स लॉ में यही कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो सेम रहता है। तो अगर ये हमारा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मैंने कंटेनर का हॉरिजॉन्टल लेवल बोर्ड पे ड्रॉ किया, तो उस पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे भी प्रेशर P होना चाहिए और यहाँ पे भी प्रेशर P होना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, दैट इन अ लिक्विड एट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन pressure is same at all points. So why I am emphasizing on this pressure is same at all points and why Pascal's law is so important in our hydrodynamics? You apply the formula of force. We know that force is defined as pressure into area. This is the general formula. If I will apply this formula for piston 1, piston 2 and piston 3, all 3 pistons must observe same pressure due to Pascal's law. What is the force which is coming out of piston 1? Let us say that is F1. तो आपके पास F1 की वैल्यू हो जाएगी P into A. Let us say first equation. अब अगर हम बात करते हैं force which is applying by liquid on piston F2, that will become equal, pressure is same into में 2A, that is second. And if we will talk about the force which is experienced by piston 3 due to liquid which is inside, fluid which is inside, the F3 force is going to be P into 3A. From these 3 equations you can observe easily that your F1 is equal to PA, F2 is equal to 2PA and F3 is equal to 3PA, which means that force is increasing with increase in area, or in other words you can say F3 is equal to 3 times F1 while F2 is equal to 2 times F1. So if this relation is still not troubling you, or if this relation is still normal for you, let me give you one more insight about this, how this law is the basis for hydraulic brakes, for hydraulic lifts,
for the disc brake in the bike and for the brakes in car, for the jacks, oil jacks, and for the heavy press machinery, how this Pascal's law is giving us such results which are not easy to believe in the first go. I'll explain after this. तो जो लास्ट पॉइंट मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, दैट इज अबाउट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलिक प्रेस और इट इज आल्सो नोन एज ब्रह्मा प्रेस. व्हाट इज ब्रह्मा प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस और पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने एक हाथ से कार उठा सकते हो तो क्या आप यकीन कर लोगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर कैसे मजाक कर रहे हो, बट यस यू कैन डू इट. इट इज सिंपल फिजिक्स. आप सिर्फ अपनी एक उंगली से भी प्रेस करके आप एक ट्रक भी उठा सकते हो if you will get the proper ratio of area in a hydraulic device. there is no other machinery involved. आपको कोई मोटर, कोई इंजन, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपके एक उंगली से आप भारी से भारी चीजें उठा सकते हो. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. आप देखो, अगर आपके पास एक इस शेप का, अगर आप एक कंटेनर बनाते हैं, इस शेप का आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन में आप लोगों से बात करूंगा जैसे आपका फिजिक्स की बुक में दिखाया हुआ है. इधर हमारे पास कुछ फ्लूइड है, ऑयल जनरली हम यूज करते हैं, एंड लेट अस से वी आर हैविंग अ पिस्टन हियर और एक पिस्टन हमारे पास यहाँ पे है. तो इस वाले पिस्टन का जो एरिया है वो हमारे पास जो एरिया है वो है A1 और इस वाले पिस्टन का जो एरिया है वो है A2. Obviously A2 is much greater than A1. ठीक है. अब आप क्या करते हैं, आपने इस वाले पिस्टन को ऊपर एक कनेक्ट कर दिया प्लेटफॉर्म से, इस वाले पिस्टन को कनेक्ट कर दिया और ये जो है एरिया बिल्कुल सील है, इनमें से आपका ऑयल बिल्कुल लीक नहीं होता और ये सारा जो फ्लूइड है अंदर ये आपका कनेक्टेड है. तो इट इज वर्किंग लाइक अ सिंगल फ्लूइड बॉडी कनेक्ट है. ये आपस में डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, कंटेनर की कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए. अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे F4 सप्लाई करते हो या लेट अस से F1 4 सप्लाई करते हो, तो आप जो इस पॉइंट पे प्रेशर जनरेट करोगे P1 या P बोल देते हैं हम उस प्रेशर को, वो प्रेशर P क्या होगा? F1 by A1. नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अभी आपने पढ़ा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो सारे पॉइंट्स पे सेम रहता है. तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पे भी प्रेशर आपका P ही होना चाहिए और अगर इस वाले पॉइंट पे आपका प्रेशर P है तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपका सेकंड पिस्टन है, ये आपका फर्स्ट पिस्टन है, ये आपका सेकंड पिस्टन है, तो सेकंड पिस्टन पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F, लेट अस से दैट इज F2 और आप F2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड पिस्टन के एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो आपके पास जो F2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी PA2. लेट अस से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी. P इज इक्वल टू F1A. आप F2 कैलकुलेट करने के लिए P की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से F1 by A1 और A2 आपके पास है ही. तो आपके पास F2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी A2 डिवाइड बाय A1 इंटू F1, यानी कि जो आपका रेशो है एरिया का. लेट अस से योर A2 इज इक्वल टू 100 times A1, then what you will get here F2 is equal to 100 A1 divided by A1 into F1. अगर आपका एरिया 100 टाइम्स है पिस्टन 2 का पिस्टन 1 से, तो आप A2 को 100 A1 लिख सकते हैं इस इक्वेशन में. A1 से A1 आपका कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट F2 is equal to 100 टाइम्स F1. यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करोगे, 1 किलोग्राम फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 न्यूटन. आपको याद करा दूं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वेट, आप मास को g से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वेट बन जाता है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो F2 की वैल्यू मिलने वाली है वो 100 किलोग्राम फोर्स मिलने वाली है. यानी कि आप 1 किलोग्राम फोर्स डाल के 100 किलोग्राम फोर्स को लिफ्ट कर सकते हैं. That is possible because of Pascal's law, because pressure at same horizontal plane of fluids remains same, and we use this principle for making hydraulic lifts, we use this principle for making hydraulic brakes, we use this principle for making hydraulic jacks, and moreover if
we are having a fixed ceiling above this. We can use this concept if we extend the walls of the container. We can place our object which is to be pressed. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़ोर से दबाने की ज़रूरत पड़ती है. F2 इज इक्वल टू आपका A2 बाई A1 टाइम्स P प्रेशर, सॉरी A2 बाई A1 टाइम्स F1 प्रेशर का हमने कर लिया हिसाब. तो अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को, लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करना चाहते हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट विल अंडर गो हाई स्ट्रेस, वेरी हाई स्ट्रेस. आप जितनी स्ट्रेस यहाँ पे डालेंगे उससे 100 टाइम्स स्ट्रेस ये यहाँ पे इसको प्रेस कर देगा. तो कई बार हम प्रेस का यूज करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, कई बार उन्हें अलग करने के लिए, या कई बार पेपर को प्रेस करते हैं हम, और पैकिंग के लिए हम प्रेस करते हैं. तो प्रेस करने की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. एंड बाय अचीविंग द desired ratio by increasing the area A2 whatever is desired, or we can also cascade this design. Cascading का क्या मतलब होता है कि जो आपने F1 फोर्स लगाया आपको 100 टाइम F2 फोर्स मिल गया. अब इस 100 टाइम F2 फोर्स को आप ऐसे ही एक और डिवाइस बनाओ और उसके फर्स्ट पिस्टन की जगह आप F2 वाला फोर्स यूज करो, और फिर उसके 100 टाइम्स रेशो से अगर आप जाओ तो आपको सीधा 100 into 100 10,000 टाइम्स फोर्स मिल जाएगा. यहाँ पे आप 1 किलोग्राम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे आपको 100 किलोग्राम फोर्स मिलेगा. वो 100 किलोग्राम फोर्स आप जिस पिस्टन पे लगाएंगे उसका एरिया छोटा होएगा, उसके दूसरी साइड जो सेम लेवल पे पिस्टन कनेक्ट होगा उसका एरिया 100 टाइम्स होगा. तो यहाँ पे अगर आपको 100 किलोग्राम फोर्स मिलेगा तो वहां पे आपको फिर अगेन 100 into 100 10,000 टाइम्स आपको फोर्स मिल जाएगा. तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जनरेट करने की जो डिवाइस है वो हम बना सकते हैं इस हाइड्रोलिक प्रेस से. The only practical limitations which came is the strength of the container. Practical अगर हम बात करें, theoretical level में 10,000 गुना बोलना बहुत आसान हो गया, लेकिन ये जो सील है पिस्टन मूव करता है, यहाँ से ऑयल लीक नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई होता है. और ये जो आपका पूरा कंटेनर है ये भी इतना मजबूत होना चाहिए कि ये इस ऑयल के प्रेशर को टॉलरेट कर सके. मोर ओवर जब तक आप प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे तभी तक प्रेशर रहेगा. इफ यू विल रिमूव द प्रेशर तो दिस थिंग विल कम डाउन. तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करें कि जैसे हाइड्रोलिक प्रेस में कार को उठा देता है फिर तो कार ऊपर ही रहती है लगातार, कोई पर्सन उस बटन को दबा के नहीं रखता. तो उसके लिए ना यहाँ पे आपके पास चेक वाल्व लगाया जाता है. चेक वाल्व का मतलब होता है कि एक बार जो ऑयल का प्रेशर यहाँ से यहाँ बिल्डअप हो गया फिर उसके बाद वो ऑयल वापस नहीं आ सकता. तो इसलिए यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो जाएगा वो प्रेशर उतना ही रहेगा. फिर उसके बाद जब आप इस चेक वाल्व को ओपन करेंगे तब तेल वापस जाएगा, तब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ जाएगा. आई होप आपको हाइड्रोलिक प्रेस का कंसेप्ट क्लियर है. एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स वी कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स इन द लाइव सेशन. सो आई विल वाइंड अप माय वीडियो एट दिस पॉइंट. Like always, thanks for watching. Please like, subscribe and share it as much as you can so that maximum number of students can study physics in very simple and to the point way. Thank you. Bye.